News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. The program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is State Bank of India. You can ask questions directly to our expert on our studio number 011-2342-1165. The numbers once again are with the STD code 011-2342-1165 and also on our email ID moneymatters.air@gmail.com. Once again, our topic is State Bank of India with our expert Dr. Yamini Agarwal. I'm Arjun Chaudhary and this is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मनी मैटर्स के ताजा अंक में आपका स्वागत है। वित्तीय साक्षरता से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम एक तय विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है देश में बैंकों की माली हालत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज से हम फोन इन यानी आपके सीधे फोन कॉल को भी सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा यदि YouTube चैनल पर आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जाकर इसी समय हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि आप सुन रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। यदि आप हमारे आगामी अंक के लिए या आज के भी अंक के लिए ईमेल से सवाल पूछना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। यदि आप सीधे बातचीत हमसे करना चाहते हैं और देश में बैंकों की माली हालत विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 011-2342-1165 011-2342-1165 हमारे साथ चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। And in today's program, with the topic being State Bank of India, the apex public sector bank, which was nationalized under the directions of the central government, is responsible for how the entire family of public sector banks are led in terms of what the borrowing rate is, the bank rate, and what the lending rate is as well, the direction that they follow from the central bank. Dr. Yamini, how do you look at the State Bank as a leader in this pack of PSU banks? Right now, the news coming in about State Bank is that they're going to buy a majority stake into Yes Bank, 49%, which is not exactly a majority stake, just below the 51% majority. It would be a substantial controlling stake in Yes Bank, bailing out a bank like Yes Bank, which is troubled in terms of how its promoters have behaved. How do you look at the State Bank right now in the entire banking industry? State Bank of India is a very strong bank. It's the largest public sector bank in the country. And with the mergers of the different associate banks, it has been able to create an overall strength in the banking setup. It is recognized as one of the largest banks, and thereby when it brings about confidence and stability in the entire financial system by bailing out the private sector bank like Yes Bank, which has recently got into a crisis, it brings about the greater resilience of the banking sector much in focus. The banking sector has been resilient of many of the crises which have been going globally as well. But what is recognized in our system is that there are 4 prime banking setups which are likely to be there. The first is going to be the public sector banks, which are going to be the large sector banks which are there. Then the mid-sized banks, which will be considered at the second stage. The third would be the smaller private sector banks or the regional rural banks or the cooperative banks. And the fourth would be the digital economy banks. Now, given this particular setup, one of the largest lenders in the economy and creating the setups for the benchmarks is the State Bank of India. So when you look at the state of banking in India, which is what we're looking at in terms of the leading bank, the State Bank of India, how would you say that the rest of the banking community should behave when you have a situation like Yes Bank, which is troubled? There have been talks about
the private banking sector also helping out the State Bank of India and bailing out a troubled bank like Yes Bank? Do you think the responsibility has to be joined because the State Bank of India is also a for-profit enterprise just like any other public sector bank? So when you look at the state of banking in India, do you still think that the responsibility should still lie with public sector banks? Well, when we look at the entire banking system today, we do see that given the condition of the NPAs, which was in 2014 about 11 lakh crores, the weak amount of credit growth which has happened in the private sector, there has been a lower or a fragile profitability in the banking system per se. However, there has been large number of innovations which have changed the banking setup, coming up of the fintechs, digital transformations, have changed the way banks have brought about or introduced change. This fiasco of Yes Bank, or the crisis which has happened where they did not report the hidden NPAs, or there have been kickbacks given to the main promoter with respect to specific loans given to DFHL, as well as many other stressed entities, continuously bringing about more and more loans given to them just to secure their NPAs and other activities, has caused a little bit of let's say a sentiment where people do not have so much confidence. And at that time, when a bank which enjoys maximum confidence and runs parallelly in terms of the maximum amount of transactions which are done through the economy, this bank coming to support the failing bank helps in bringing about the requisite confidence and value in the Indian banking system. यामिनी जी, यहाँ पर श्रोताओं की ओर से हम ये समझना चाहेंगे, वर्तमान हालत में जबकि कई बैंकों के बारे में संदेह के बादल उठने लगे हैं, एक आम बैंक में धन रखने वाले व्यक्ति का कह लें कि जमा पूंजी किस तरह सुरक्षित रहती है और केंद्रीय रिजर्व बैंक किस तरह से हमारी बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करता है जिससे कि आम लोगों के हितों पर अधिक नुकसान ना पहुंचे उन्हें? जी देखिए, बैंक का काम होता है कि वो आपके डिपॉजिट्स लेकर के रखे और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे, और जब वो डिपॉजिट्स रखता है तो उसे क्रेडिट के तौर पे आगे बाजार में देता है, और वो ऐसा क्रेडिट दे जहां पे उसे इंटरेस्ट मिले और वो आपको सर्विस कर सके, आपके सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं प्रिंसिपल पेमेंट भी दे सके। बैंकों के जो एनपीएस बढ़ते हैं वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो उनको उन्होंने क्रेडिट दिया होता है वो उनको इंटरेस्ट, ब्याज जिसे कहते हैं, और उनका प्रिंसिपल पेमेंट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके पास जो पैसा होता है जो बाकी आगे जाने वाला होता है या अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न करने वाला होता है वो पूरा नहीं बैठ पाता। तो बैंकों की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ये जो है एनपीएस क्रिएट ना होने दें, ड्यू डिलिजेंस करें और फिर सही तरीके से लोन दें। इसके लिए आरबीआई जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है, फोर्थनाइटली रिपोर्ट्स मंगवाती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स मंगवाती है और देखती है कि जो है जो जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है उसमें वो एक्यूरेट रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जो अकाउंट्स खुल रहे हैं उनमें केवाईसी नॉर्म्स हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे गवर्नेंस में चूक नहीं हो रही जिसमें बैंक्स डिपॉजिटर्स के पैसे खा करके उन्हें जो है गलत जगह ट्रांसफर कर दें। बैंकिंग स्थिति में एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो आपके डिपॉजिट्स को इंश्योर करती है, जिसका पहले इंश्योरेंस था 1 लाख रुपीस पर डिपॉजिटर और जो अब कर दिया गया है 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर। तो कोई भी डिपॉजिट मेंटेन किया जाता है बैंक के साथ उसको 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है। अगर वो बैंक डिसॉल्व हो जाता है और उसके एसेट्स बेचने के बाद कुछ नहीं मिलता है तब, अदरवाइज वो जो बैंक है वो अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू डिपॉजिटर्स को पैसे देने के लिए बाध्य होता है। And now we're joined by our first caller in this program, Money Matters. Hello, a warm welcome to you on this program, Money Matters. Hi, my name is Rahul. I want to ask a question to expert Yamini ji. Considering, hello to all Money Mentor team. मैम, आप जो है ये जो पूरी यस बैंक अगर देखा जाए अगर और इंडियन पूरा बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो अभी आपको क्या लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे पीएनबी में भी पिछले साल क्राइसिस हुआ था,
तो पब्लिक सेक्टर बैंक की कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया जैसी कंट्री में जो हैवीली पब्लिक सेक्टर बैंक कवरेज जिसमें बहुत ज्यादा है? जी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बहुत मेजर सेक्टर है और 75% ऑफ द बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। तो उनकी एक काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठ जाती है कि वो जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, क्योंकि अगर एक बार वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है तो फिर बैंकिंग सिस्टम का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे बैंकिंग प्रणाली क्रेडिट डिपॉजिट और मल्टीप्लायर पे चलती है, जिसमें जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसको कितना क्रेडिट दिया जाता है और उस क्रेडिट के ऊपर और कितना क्रेडिट्स ऑफर होते हैं उसके ऊपर चलती है। Dr. Yamini, we have also seen that global banking standards have to be maintained by either the private banking or public sector banks according to the Basel Accord, which has been reached in Basel, Switzerland, where capital adequacy ratio has to be maintained by all banks. So over here, we have issues on corporate governance, which is right now the primary issue being discussed in the nation, but capital adequacy norms have to be maintained. And how do you see public sector banks upholding that when compared to private sector banks? When we adopted the Basel III norms, and according to the Basel III norms, the capital adequacy norms were also maintained through with them. And as a result, many public sector banks which were not able to maintain the capital adequacy ratio were recapitalized in the particular process. Also, given the recapitalization in the few years, there has been about 80,000 crores which has been reinvested in these public sector banks. Besides the mergers which have been initiated by the government primarily to secure a larger lender and a greater strength to the banks and create synergies of the mergers. श्रोताओं, आज आप हमारे कार्यक्रम में सीधे सम्मिलित हो सकते हैं और YouTube पर हमसे बातचीत कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आकर हमसे सवाल पूछते हैं, या चाहें आप फोन लाइन पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01123421161। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, और हम चर्चा कर रहे हैं देश में बैंकों की माली हालत विषय पर। यामिनी जी, बैंकों के विभिन्न कह लें कि निजी क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, एक निवेशक का धन कहाँ सुरक्षित समझा जाए अभी के माहौल में, या हर जगह लगभग एक ही जैसी स्थिति है, उनका धन पूरी तरह सुरक्षित है? जी, जब भी आप बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट्स रखें तो इसके लिए ये ज़रूर देखें कि जो बैंक की प्रणाली है या वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो ठीक है या नहीं। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अगर आप देखें तो वो एक डिपॉजिट रेट होता है। अगर कोई भी बैंक बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रेट देता है जो मार्केट रेट पे नहीं होता, तो वो उसके ऊपर एक सवाल या निशान आ जाता है। जैसे अगर आप येस बैंक की भी स्थिति देखें तो पिछले एक साल में उनके डिपॉजिट रेट्स बाकी के बैंकों के रेट से ज़्यादा थे। ऐसे ही अगर आप और कोऑपरेटिव बैंक्स देखें या और बैंक्स देखें तो उनकी भी स्थिति ऐसी थी। जहां पे आप बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। पर क्योंकि सारे बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं और सुपरविजन के अंडर आते हैं, तो सभी बैंकों के अंदर स्थिति सामान्य रहती है और आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की क्योंकि काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि वो उनके फेलियर रेट्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी जो ओवरऑल रिस्क है वो कहीं ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो छोटा बैंक होगा या स्मॉल बैंक होगा, उसकी जो स्थिति है या स्टेबिलिटी रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी है वो कम होगी बड़े बैंक के मुकाबले। पर ऐसा नहीं है कि बड़ा बैंक फेल नहीं हो सकता या सिर्फ छोटा बैंक फेल होता है। स्थिति इस पे निर्भर करती है कि कितने एनपीएज हैं और वो किस तरीके से उसे गवर्न कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी एसेट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए कैमल रेशियो की बात करते हैं, जिसके अंदर कैपिटल, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स और लिक्विडिटी पोजीशन एक बैंक की बहुत जरूरी है देखने के लिए। And you were listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel, where we were discussing today's topic, State of Banking in India, with our expert, Dr. Yamini Agarwal. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.eir@gmail.com. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मनी मैटर्स में। मनी मैटर्स यानी वित्तीय साक्षरता से जुड़ा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें
बचत, निवेश, कर्ज तथा कर जैसे पर्सनल फाइनेंस से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है और आपके सवालों को भी आमंत्रित किया जाता है। आप भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं ईमेल के सहारे moneymatters.air@gmail.com पर, या फिर सीधे हमसे कार्यक्रम चल रहा हो उस दौरान 01123421165 पर 1 पर डायल करके। श्रोताओं, आज हम देश में बैंकों की माली हालत विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यामिनी जी, बैंकिंग तंत्र में कह लें कि शुरुआती दौर में आजादी के समय में निजी क्षेत्र के ही बैंक थे, फिर बाद में उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद निजीकरण का ये दौर आया। एक कह लें कि चक्र के रूप में हम देख रहे हैं बैंकों के स्वामित्व में बदलाव आना, उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव आना। वर्तमान काल में जो स्थितियां हैं उसमें बैंकिंग पूरे तंत्र के सामने, भारतीय बैंकिंग तंत्र के सामने संकट कौन सा है जिसके चलते चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो या सरकारी क्षेत्र के बैंक हो, उनको अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ रहा है? जी देखिए, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन इकोनॉमी में है वो है एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का, जिसके अंदर जो बैंक्स की बैलेंस शीट है उसमें एनपीएस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। पिछले सत्र 2018 से लेकर के 2019 में देखें तो एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कम हुए हैं। सितंबर 30, 2019 का जो रिपोर्ट देखें उसमें 7,27,000 करोड़ 27 लाख करोड़ के एनपीएस थे, जो पिछले उससे पहले थे 8 लाख करोड़ के आसपास, और उससे पहले कहीं ज्यादा। तो जो ये एनपीएस थे वो 2008 के मुकाबले में कम हुए हैं पीएसयू में, पर फिर भी एनपीए की स्थिति काफी ज्यादा है। कॉर्पोरेट्स के भी डेट्स काफी ज्यादा हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स अभी बहुत ज्यादा लोन ना तो उठा पा रहे हैं और ना ही अपने जो उन्होंने लोन ले रखा है उसको पे ऑफ कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफी असर पड़ा है और काफी कॉर्पोरेट्स एनपीए की कैटेगरी में आ गए हैं, जिसके तहत आपके जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर काफी असर पड़ा है। बैंकिंग पे एक फिनटेक्स का भी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी असर पड़ा है। कंपटीशन काफी स्टिफ हो गया है और जो फिनटेक्स हैं उनकी वजह से जो पीयर लेंडिंग का सिस्टम है या क्राउड फंडिंग का सिस्टम है या एक इनफॉर्मल सेटअप है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का आना है, उसकी वजह से भी बैंक्स के अंदर काफी कंपटीशन आ गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो बैंक्स निपट रहे हैं, एक बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, बेटर डिजिटलाइजेशन की तरफ, और एक डाइवर्सिफाई करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ट्रेडिशनल लोन पोर्टफोलियो से लेकर के एसेट मैनेजमेंट में जाकर के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और अदर एक्टिविटीज की तरफ रुख करते हुए। Yamini, in today's topic, State Bank of India and state of banking in India, we are seeing a lot of consolidation in the market as well. If you look at public sector banks, we are seeing the smaller PSBs being amalgamated into the larger PSBs, and even in the private banking, we are seeing Kotak Mahindra Bank seeking to acquire the Lakshmi Vilas Bank as well. So we're seeing a lot of mergers in the banking industry. Why are we seeing that right now? Well, there are a few reasons for that. One, mergers create synergies which affect the overall consolidated state of a bank to service the overall economy and its presence in the economy in a better competitive manner. Second, what has been seen in many public sector banks that they were put under the PCA, which was the prompt corrective action. And as a result, since they were put under prompt corrective action, they could not hire more employees, they could not set up new branches, they could not give any further loans, and as a result, they were restricted in their credit activity. And since their NPAs were very large, despite the recapitalization, they were unable to regain the strength in the market. And with the mergers which has been introduced by the government for the public sector banks, it has been tried that the health of the ailing banks with the strong banks could help together bring them balance sheet strengths and competitive strengths in the market. So they've been merged with SBI primarily to also make this one bank as one of the largest, as top 50 banks in the world, which can gain strength not only in India but internationally.
It has also been observed that mergers and acquisitions in the banking industry are very common, but not so common in India, primarily because the presence of the public sector banks is 75% of the banking system as against many other places. यामिनी जी, यहाँ पर बैंकिंग जो पूरा तंत्र है, पारंपरिक बैंकिंग तंत्र है, उसके सामने जो नए तरह के कह लें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, पैसों के लेन देन के लिए जो नए नए कह लें निजी क्षेत्र के जो नए तंत्र विकसित हुए हैं, उनसे किस रूप में उनका कारोबार प्रभावित हो रहा? क्या उन्हें इसका लाभ मिल रहा या उन्हें नुकसान पहुंच रहा? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी डिजिटल फॉर्मेशंस की एक्टिविटी प्रमोट की है, जिसके अंदर IMPS, UPI के थ्रू डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की हैं। उसके अंदर अब माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर है डेली का, और इस टर्नओवर के तहत देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके माध्यम से जो फिनटेक कंपनीज हैं या जो 11 पेमेंट बैंक्स RBI ने अप्रूव किए थे, जिसमें 4 मेजर पेमेंट बैंक्स अभी प्रमोट हो रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। अभी चलते हुए येस बैंक के कारण जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो एक कंपनी को प्रॉब्लम आई थी, पर बाकी कंपनीज अभी भी अपना डिजिटल पेमेंट नेटवर्क कंटिन्यू करके रख पाए हैं। जहां तक UPI का नेटवर्क की बात है, माना जा रहा है कि RBI का ये जो फ्रेमवर्क है वो सिर्फ इंडिया में ही सिर्फ पॉपुलर नहीं हो रहा है, इसको एक मॉडल फ्रेमवर्क की तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी आगे लागू किया जा रहा है, और एक सब्सिडरी भी बनाई जा रही है जिसके तहत इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी एक UPI फ्रेमवर्क में लाया जाए। जो बैंक्स हैं वो डिजिटल डिस्ट्रप्शंस की पहले बात करते थे और अब वो डिजिटल सब्सिडरीज की बात कर रहे हैं और फिनटेक्स के थ्रू अपना जो कारोबार है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो फिनटेक्स जहां पे पहले बेसिक डिस्ट्रप्शंस थी, अब वो सब्सिडरीज या कॉम्प्लीमेंटरीज हो चुकी हैं। Yamini, we're also seeing that there are amendments in the Companies Act and the Banking Regulation Act in terms of the equity stake holding into the bank itself. We are seeing that the promoters have been made to divest their majority holdings in the bank, and that's one of the reasons why Yes Bank was discovered to have engaged in malpractices. Well, yes, in the Yes Bank crisis, it has been found that there were kickbacks which were given to a large amount for the different loans which were dispersed to stressed entities. And it is one of the factors which has been seen in the banking setup where it is believed that, unless you grease the palm of the bank officials, you are not given the loan. And as a result, a lot of greasing did take place, which has had a bad impact over the bank's balance sheets, its credibility, and its overall loan portfolio and asset quality. So we're seeing greater oversight by the Reserve Bank into the operations of private banking now. With private banking as well as over the overall banking setup, the supervision guidelines have been reformed, in which CAMEL, besides that CRILAC, and the others have been put in place. Urban cooperative banks have also been taken care of, as well as small banks have also been given advisory in terms of maintaining proper corporate governance supervision. यामिनी जी, यहाँ पर आम कह लें कि जो छोटे बैंक सेवा लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनके नजरिए से बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि उन्हें किस तरह के बैंक में जाना चाहिए और किन किन तथ्यों का ध्यान में रखना चाहिए अपने यानी जमा राशि के लिए, ताकि उनका धन यदि मान लें बैंक फेल भी हो या बैंक पर कोई संकट भी आए तो उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। बहुत बहुत संक्षिप्त सवाल। जी, कोई भी बैंक जो चुने वो उसका जो RBI की सुपरविजन के अंदर आए और उसकी जो शाखा है वो रिकग्नाइज्ड हो। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामिनी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Well, I hope our listeners enjoyed today's topic discussion on SBI and the state of banking in India. Tomorrow's topic is Public Distribution System on Money Matters. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.